हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट थर्ड। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट एंड वी आर नोइंग अबाउट व्हाट हैपन व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, किस टाइप की वो फोर्स को फील करेगा। टुडे वी आर नोइंग अबाउट इन दिस पार्ट एंड वी आर ऑल्सो नोइंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड type of electric motor. So let's begin this part. Force on a current carrying conductor. When a current carrying conductor placed in a magnetic field, it experience a mechanical force on it. जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कुछ मैकेनिकल फोर्स लगती है विच कैन मेक द कंडक्टर टू मूव, जो कंडक्टर को मूव करने में हेल्प करती है। The direction of the force exerted or experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is perpendicular to the direction of current and perpendicular to the direction of magnetic field. Like say, north and south is a direction of magnetic field and direction of current in a conductor is perpendicular to it and force is upward. Then all three are mutually perpendicular to each other. Force, current and magnetic field are mutually perpendicular to each other. तीनों चीज़ें आपस में perpendicular होंगी. How we can learn it? English वर्ड FBI, जो अमेरिकन एजेंसी है, आप उससे इसको याद रख सकते हैं। FBI, FBI शॉर्टकट है इसको याद रखने के लिए। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाइंड आउट बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फाइंड आउट बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। Fleming's left hand rule says that hold the forefinger, middle finger and thumb of your hand at the right angles to one another. हमें अपने राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं लेफ्ट हैंड के, उनको इसी तरह से होल्ड करना है कि वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। फोर फिंगर, थंब और मिडल फिंगर, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरह से हमें उसे स्ट्रेच करना है। Adjust your hand in a such a way that the forefinger points the direction of magnetic field. जो फोर फिंगर है वो हमारा होगा B, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड द मिडल फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट I, and thumb will project the direction of motion. Thumb will project the direction of motion in which the force is acting on it. Another rule to find the direction of the force experienced by current carrying conductor placed in a magnetic field, right hand palm rule. This is for the questions only, not in syllabus. This is not in syllabus. Right hand palm rule says that magical rule. The thumb is pointed toward the direction of current. Thumb is pointed toward the direction of current, and the palm is towards the direction of force, and all fingers in direction of magnetic field. See, the formula of the force experienced by the current carrying conductor placed in a magnetic field. क्या है formula current carrying conductor का? F vector is equal to I B L sin theta. That means the sin theta is the angle between length of conductor and magnetic field. Length of conductor and magnetic field. F is the force experienced by the current carrying conductor placed in magnetic field. B vector is the magnetic field exerted by between two poles of the magnet, and L vector is the length of the conductor which shows the direction of current, and theta is the angle between L and B. Magnetic field intensity, B is the magnetic field intensity. The maximum force is exerted by, अब आप इसके कुछ केस करेंगे। The maximum force is exerted on a current carrying conductor placed in a magnetic field when the conductor is placed perpendicular to the direction of field. जो हमारी जो लेंथ है कंडक्टर की, वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब हम मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। देन एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स। हाउ इट इज शो, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री एंड साइन 90 इज वैल्यू इज 1।
जब वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम फोर्स आ जाएगी। अब इस पर हम अपना रूल लगाते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। हमें पता है कि जो हमारी मिडिल फिंगर है इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी होगी मैग्नेटिक फील्ड मिडिल फिंगर, और जो हमारी जो है फोर फिंगर, सॉरी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी, ये हमारी फोर फिंगर होगी, फोर फिंगर। और हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन हमारी क्या होनी चाहिए, मिडल फिंगर होनी चाहिए, मिडल फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट। जो मिडल फिंगर हो जाएगी वो कहाँ हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट में हम लगा देंगे। जब मिडल फिंगर की डायरेक्शन ऑफ करंट में हम लगाएंगे लेंथ के अकॉर्डिंग, तो हमें करंट की डायरेक्शन ये लेते हैं, ठीक है। जब हम करंट की डायरेक्शन ये लेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आउटवर्ड आएगा, थंब हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। अप्लाई करके देख सकते हैं, इसमें जो डायरेक्शन है ये रॉन्ग है, ये आपने नीचे की तरफ कर लेना करंट का। F is equal to IBL sin theta, F maximum IBL sin 90, sin 90's value is 1, then force is maximum. No force acts on a current carrying conductor when it is kept parallel to magnetic field, that means theta is 0. जब हम कंडक्टर को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो उसके साथ एंगल क्या क्रिएट करेगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री होने पर साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, ओवरऑल फैक्टर बिकम 0 एंड नो एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तब जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। The direction of the force on a current carrying conductor placed in a magnetic field can also be reversed by reversing the direction of magnetic field. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। 1 टेस्ला, 1 मीटर लेंथ ऑफ द वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पासिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर थ्रू इट, देन फोर्स इज इक्वल टू IBL। करंट का यूनिट एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ला, लेंथ मीटर। तो इन सारों के यूनिट को जब हम निकालेंगे तो टेस्ला ये न्यूटन के उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1 टेस्ला। 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर मीटर इज नोन एज टेस्ला। सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। फाइंड द फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन, फाइंड द फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन में फोर्स भी फाइंड आउट करनी, डायरेक्शन भी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 2 टेस्ला गिवन है, लेंथ ऑफ कंडक्टर 4 मीटर गिवन है, करंट है 5 एम्पियर, थीटा इज 90 डिग्री। सो फोर्स कितनी आ जाएगी, IBL साइन 90, 90 इज वैल्यू 1, साइन 90 वैल्यू 1, फोर्स 5 एम्पियर, 2 टेस्ला 40 न्यूटन टोटल फोर्स आएगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देखेंगे और हमसे डायरेक्शन को निकाल देंगे। नाउ सी, this is a, we know that very well, this is a inward magnetic field and this is a notation for outward. Inward magnetic field, what kind of force experienced by length 2 meter current। तो सबसे पहले हम फोर्स निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज लेफ्ट हैंड साइड बाय अप्लाइंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ करंट में आपकी होनी चाहिए मिडिल फिंगर, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में आपकी होनी चाहिए फोर फिंगर, और थंब इज प्रोजेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। इन सिमिलर वे व्हेन द करंट इज इनवर्ड देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज राइट हैंड साइड। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन द फॉलोइंग केसेस। अब इनमें हमने निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। देखिए करंट की डायरेक्शन हमें गिवन है, फील्ड की डायरेक्शन गिवन है, तो हमें पता नहीं फोर्स की डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड, ये आपको अप्लाई करके देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड रूल अपनी प्रैक्टिकल हैंड से। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, तब आपके पास फोर्स हो जाएगी राइट हैंड साइड जब करंट हमारे परपेंडिकुलर है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कन्वेंशन ऑफ करंट हमें क्या बताता है, डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट की डायरेक्शन को ही हमें लेकर चलना है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डाउनवर्ड। अब हमारे पास 3 केस हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। वी नो दैट अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिव, देन इट इज अ कन्वेंशन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट में हो जाएगा। बीटा पार्टिकल इज नेगेटिव, तो हमारा करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। गामा 0 है तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी नहीं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन अल्फा पार्टिकल इज लेफ्ट हैंड साइड, बीटा पार्टिकल राइट हैंड साइड। Another questions. A stream of positively charged alpha particle moving towards the west is deflected towards the north by the magnetic field of direction of magnetic field is। इसने कहा एक स्ट्रीम है, जो स्ट्रीम है अल्फा पार्टिकल्स की कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स वेस्ट। अ स्ट्रीम ऑफ अ पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रही है, अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं वेस्ट की तरफ। फिर इसने क्या कहा है, वेस्ट एंड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ,
और नॉर्थ की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी फोर्स की डायरेक्शन नॉर्थ में हो गई। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप इसमें लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। फोर्स थंब को कर लोगे, मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में ले चलोगे और आपकी जो फोर्स आ जाएगी, आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, वो कहाँ आ जाएगी, आउटवर्ड आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ जाएगी, आउटवर्ड आ जाएगी। जिन्हें हम अपवर्ड करेंगे। थिंक यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर with your back to wall. The electron beam is moving horizontally from back wall towards the front wall if deflected by a strong magnetic field to your right hand side. What is the direction of magnetic field? देखिए, are you sitting on a chair? Then say a electron beam is moving horizontally from back wall towards the front wall. पीछे से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, आपकी तरफ करंट आ रहा है। देन से द फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड योर राइट हैंड साइड। आपका जो राइट हैंड होगा, बैठे हो जहाँ पे, राइट हैंड साइड आपका होगा, उससे आपका मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड योर राइट हैंड साइड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। फोर्स की डायरेक्शन आपकी राइट हैंड साइड में हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रंट टुवर्ड्स अस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज राइट हैंड साइड अपवर्ड, क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड। तो प्लेन ऑफ पेपर से बाहर, मतलब ये आपकी राइट हैंड साइड होगी, बाहर हो गई। तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ चली जाएगी। देन डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ हो जाएगी। आई होप आर यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ force on a current carrying conductor. Now we do the application of force on current carrying conductor, that is electric motor. Electric motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. इलेक्ट्रिकल मोटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट करती है। डीसी मोटर, डायरेक्ट करंट बेस्ड मोटर, द इलेक्ट्रिक मोटर विच वर्क्स ऑन द डायरेक्ट करंट इज नोन एज डीसी मोटर। प्रिंसिपल ऑफ मोटर, a motor works on the principle that when a current carrying conductor coil placed in a magnetic field, a force acts on a coil which rotates it continuously. जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में एक कोयल बना करके, एक रेक्टेंगुलर कोयल को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, देन दिस रेक्टेंगुलर कोयल स्टार्ट्स टू मूव कंटिन्यूअसली। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, दैट मीन्स फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फील्ड। Now construction of motor. An electric motor consists of two opposite poles of magnet which are concave from inside, अंदर से जो concave होंगे, and the rectangular coil ABCD। अंदर से concave का मतलब हमारी अंदर से concave poles होंगे, concave from inside। Why they are made to concave? To experience the more field। A rectangular coil ABCD which is placed magnetic field two poles of magnet। हमारे पास एक rectangular coil होगी ABCD, that can be placed between two poles and the ends of the half rings S1 and S2 of commutator further connected to the brushes B1 and B2 respectively, and brushes are connected with the electrical supply। commutator क्या होते हैं? A device which reverses the direction of the current through the coil is called commutator। जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे थ्रू द कोयल। अब कोयल घूम रही है, इसमें करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। अब ये ब्रश B1 से और B2 से लगातार आपस में चेंज होते हुए कनेक्ट होंगे, फॉलोइंग थ्रू द कोयल आफ्टर एवरी हाफ रेवोल्यूशन। देखिए इसमें होगा क्या, ये आपका आ गया टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, रेक्टेंगुलर कोयल एंड ब्रशेज, आपके जो ये होंगे कॉम्यूटेटर्स हो गए। अब देखिए जब ये कॉम्यूटेटर घूमेगा, कोयल इसके साथ अटैच है, कोयल घूमते हुए अब ये S1 जो है पहले B1 के साथ कनेक्ट है, फिर घूमते हुए B2 के साथ कनेक्ट होगा, और जो अपना S2 है वो B1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये इसकी वर्किंग रहेगी। When the coil ABCD is kept horizontally initially in the magnetic field, when the current passes through the arm AB, A to B, applying the Fleming's left hand rule, arm AB moves downwards. Similarly, the arm CD moves upward। जब AB डाउन जाएगी तो CD कहाँ जाएगी, अप आएगी। AB नीचे की तरफ जाएगी तो CD कहाँ चढ़ेगी, ऊपर की तरफ। इसी तरह से हमारी कोयल घूमेगी। When the coil ABCD reaches the vertical position, then the brushes B1 and B2 touches in gap between commutator rings S1 and S2 and the current is cut off। जब S1 और S2 से देखिए, जब ये वर्टिकल पोजीशन में चली जाएगी हमारी कोयल,
एकदम खड़ी हो जाएगी स्टैंडाइज, तो इसमें स्प्लिट रिंग जो है वो एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा और ब्रशेस से कनेक्शन उसका टूट जाएगा, गैप के बीच में ब्रशेस आ जाएंगे। After the half rotation, the direction of the current will be changes from B to A and D to C. Now arm AB moves upward and CD moves downward. जब हमारा CD घूम करके दूसरी साइड आ जाएगा तो उस पर लगेगा. Then hence motor complete its complete rotation. Note: on commercial motor, the coil is wounded on the soft iron core, and the soft iron core becomes magnetized and increase the strength of magnetic field. This makes the motor more powerful. Ways to increase the rotation of motor: मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दें, करंट को इंक्रीज कर दें और नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें, एरिया ऑफ कॉइल को इंक्रीज कर दिया जाए. आई होप आर यू अंडरस्टैंड द ऑल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द दिस पार्ट. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल for upcoming notification. Thank you and have a nice day.